सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं नहीं कछ हाओ नहीं, किछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लेहो, सधना जन तोरा। धर्मा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवार। वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला चौथा। पंचपदा आचार चरै तां सिद्ध होई। सिद्धि ते बुध पाई। प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भरम काटिया जाए। आचार चरै तां सिद्ध होई। सिद्धि ते बुध पाई। प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भरम काटिया जाए। मेरे गोबिंद अपने जन काओ देह वड्याई। गुरमत राम नाम परगासहो, सदा रहाओ शरणाई। रहाओ एह संसार सब आवण जाना। मन मूर्ख चेत अजाना। हर जियो कृपा करहो, गुर मिलहो, तां हरे नाम समाना। जिसकी वथ सोई प्रभ जानै, जिसनों दे सो पाए। वस्तु अनूप अत आगम आगोचर, गुर पूरा अलख लखाए। जिन एह चाखी सोई जानै, गूंगे की मिठियाई। रतन लुकाया लुकै नाही, जे को रखै लुकाई। सब किछ तेरा तू अंतर जामी। तू सबना का प्रभु सोई। जिसनो दात करहें सो पाए। जन नानक अवर ना कोई। सब किछ तेरा तू अंतर जामी। तू सबना का प्रभु सोई। जिसनो दात करहें सो पाए। जन नानक अवर ना कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहिब जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां भरदियां
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਣ 'ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜ ਪਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਰਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਧਿਆਤਮ ਮੰਡਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੱਡ ਜਾਣੀ। ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 100 ਜੀ ਚੋਂ ਸਿਰਪਾਉ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਮ ਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ
जो कल असीं वाच रहे सां, हर जीव किरपा करो गुर मेलहो तां हर नाम समाणा। हे सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरू जी, तुसीं किरपा करो तो गुरु मिले, गुरु मिलणगे तो गुरु मेरा सुधार करनगे। गुरु साडियां कमियां नूं मुका दिंदे ने, घाड़तां घड़ दिंदे ने ते बिल्कुल शुद्ध करके परमात्मा च मिला दिंदे ने। ये गुरु का करतब है। इसे करके गुरु अणघड़े नूं घड़दे ने। आ इत्थे जो आपां बैठदे हां, वेखण नूं असीं चुप करके बह जाने हां, और जगत गुरु गुरु नानक साहब जी दे वेले तो साडे घर परंपरा ही ये है कि सिख ने आउणा है, अपने सतगुर दे हजूर चुप करके शांत होकर बह जाना, जो गुरु का हुक्म मिलिया उसनूं कमाउणा। बस इन्ना ही काम है सिख दा। इत्थे किसी प्रकार का होर कोई क्रिया करन नूं वखरा भी तूं आ कर ते आ करनी। अज बेशक सानूं कई वार कईयां थावां ते सथानक रूपां दे विच कोई जथेबंदियां वल्लों, कोई सथानक डेरियां वल्लों, वो ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर 10-20-50 लोगों के इकट्ठ ने इकट्ठियां होकर कोई एक नवीं जुगत बनतर बना ली होवे, मुबारक उन्हां नूं। पर सामूहिक तौर पर जो सिख पंथ है उहदे विच ऐसा कोई क्रिया का विधान नहीं है। उहदे विच कोई विशेष क्रिया है कि भाई गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनी है, बस यही साडा विधान है। आउणा है, गुरबाणी का पाठ, कीर्तन, कथा जो भी मौके पर हो रहा है, सावधान सुचेत होकर सुनना है। इन्हां को करन दे नाल लोग पुछते ने की हो जाता है। इन्हां को करन दे नाल अगर कोई ध्यान दे नाल, प्रेम दे नाल बाणी दे कीर्तन सुनदा है तो समा पा के उसनूं समझ आउण लग पैंदी है। जे ध्यान उहदा शब्द विच हुंदा है तां समा पा के समझ आउण लग पैंदी है, तो समझ आउंदियां आउंदियां फिर सुधरना शुरू हो जाता है। उहदे विकार मिटण लग पैंदे ने, उहदे जीवन दे वल फरे विशाल मिटण लग पैंदे ने। इहनूं सिक्के ने गुरु की कृपा चंद चेतों लग पैंदी है। पर सिख नूं अपने आप नूं समर्पित ते करना पैंदा है ना, अपने भांडे नूं साफ करके अपने मुख नूं गुरु वाल करके बहना पैंदा है, फिर गुरु दात दिंदे ने। और एक रहस्यवाद है भी गुरु अपने सिख दे अंदर दे अवगुणां नूं कढदे ने। बाबा कबीर साहब दा बड़ा प्यारा बचन है कि बाहरों कई बार लगता कि चोटां लगदियां ने, कुछ गुरबाणी दे तुकां ऐसियां होंदियां डाढियां आउंदियां ने, पर अंदर जे टिकण लग पे तो गुरु का हथ नाल हुंदा है। बड़ा प्यारा जिहा बचन उन्हें एक जुगत वरती है, गुर कुम्हार शिश कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ै खोट। जिवें एक कुम्हार अपना घड़ा बनांदा तो फिर वेख के भी माड़ा मोटा किते कच्चा पेला रह गया तो फिर उन्होंने घड़दा है, ठोकदा भी है, पर बाहर की लगता अंतर हाथ सहार दै बाहर बाह चोट। उहदा एक हाथ अंदरले पासे सहारे वजों हुंदा है, पर बाहरों लगता कि थापी दी मार पै रही है। इसे तरह जिहड़े गुरमत के दर्शन टिक जाते ने, उन्होंने अंदर गुरु शब्द का सहारा हुंदा है, तो बाहरों कई बार लगता है भी परेशानियां ने, कोई चोटां पै रही ने, कोई मुश्किलात आ रही ने, कुछ इम्तिहान हो रहे हैं, तो भाई बाहरों तो थापियां पैंदियां ने, चोटां पैंदियां ने, पर अंदर गुरु के हथ का सहारा हुंदा है। तो जिहड़े छिटक जाते हैं फिर गुरु के टुट जाते हैं। गुरुदेव कृपा करन, असीं मंग करिए महाराज अपना हथ दे के सहारा देना। और ये जदों टिक जाता है, जिहदी आपां गल पढ़ रहे सां, मिल हो तां हर नाम समाण। हे सच्चे पातशाह गुरु मिलांदे हो, गुरु मिलते ने, गुरु विकार कढ़ देंदे ने ते शुद्ध करके नाम दे विच समा देंदे। नाम की है? नाम चलो वस्तु सही, पर किहदी वस्तु है? जिसकी वथ सोई प्रभ जाने। नाम वस्तु मान लिया, नाम पदार्थ है, पर किहदा पदार्थ है? असां दा ते नहीं ना। नाम ते सच्चे साहिब दे गुरु पदार्थ है, तो जिसकी पदार्थ वस्तु है उन्होंने पता है ये की है, इसकी वैल्यू कितनी है। इसे करके नाम पदार्थ हर एक नूं नहीं मिलता, क्योंकि हर एक कीमती वस्तुओं की वैल्यू नहीं जानता। नादान व्यक्ति नूं कोई वड्डी वस्तु मिल जाए तो उन्होंने गवा देंदा है,
ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਦਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਟੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਜੌਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੀਰਾ ਲੋਕ 2-4 ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰ ਮਠਿਆਈ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਖੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਗਾਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਕਈ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲੇਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੂਰਖ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇ ਬਾਲਣ 'ਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਮੁੱਲਕ ਵਸਤੂ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਪਾਏਗਾ। ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਹ ਪਰਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਥ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਪਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨਾਮਦਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਰਤਾ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਜਿਤਨਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਅਨੂਪ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮੁੱਲਕ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਅਗੰਮ ਅਤੇ ਅਗੋਚਰ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਮਤ, ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗੰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤੰਗਾ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸੂਰਜ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਰੋਕੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੋਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਅਗੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਹੋਵੇਗੀ 10, 20 ਮੀਲ, 100 ਮੀਲ, 1000 ਮੀਲ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੋਚਰ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੋਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀ ਪਕੜ ਰਹੀ, ਕੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਚਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਗੋਚਰ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ, ਬੁੱਧ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ
इसे करके गुरु नानक जी ने कोई चित्र बना के थोड़ा दिता भी इदां दा नहीं, वो एक ओंकार है, उन्होंने निरंकार कह दिता। निरभाव है, निर्वैर है, पर चेता रखना वो अकाल है। साडी पहुँच समय तक हो सकती है, पर वो समय का भी मालक है, समय तो भी पार है। वो अगम ते अगोचर है, पर की सानू नहीं मिलेगा? कहने लगे नहीं, पर गुरु मिल जाए ना तो गुरु उतों तक तुहाडी पहुँच करवा देंगे। गुरु अलख लखाए, अलख कहिए जो लखिया ना जा सके, जिसनों समझे ही ना जा सके, पर फिर भी गुरु की कृपा दे नाल परमात्मा की बख्शिश नूं माणिया जांदा है। जिवें असीं कह सकते हाँ, असीं ठंडक माणदे हाँ, निग माणदे हाँ, इत्थे बैठे हाँ, अगर कोई एक बटन दब देवे तो हाल ठंडा हो जाना है, असां ठंडक नूं मानना है, दिखदी ते नहीं ठंडक ना, माणदे हाँ। इसे तरह परमात्मा की बख्शिशां दिसदियां ते नहीं, पर माणिया जांदियां। अभ्यासी जन अपनियां अपनियां अवस्थावां ते उहदियां बख्शिशां नूं, उहदे आनंद नूं माणदे ने, क्योंकि माणदे गुरु दे सदके ने। जितने भी साडे वडेरे होए ने, जिन्हां ने नाम सिमरन करके, बाणी दे पठन पाठन करके उच्चतम अवस्थावां नूं प्राप्त कीता है, उन्हां सारियां नूं गुर करते दी बख्शिश के सदके ही ये दातां मिलियां ने। कि जो मान मिले है, महाराज कहते गुर पूरा अलख लखाए, उस अलख नूं जिसनों दुनिया के ज्ञान के दृष्टि दे नाल नहीं पकड़िया, नहीं जाने जाता, पर गुरु कृपा कर देवे उसनूं जता देंदे ने, उसनूं जाना दें। जिसनों तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सद ही आख वखाणे। जन का भाव ये नहीं किसी सारा जान लिया, नहीं, सानू पता लग गया बहुत वड्डा है। सानू ये पता लग जाता गुरु की कृपा सदके कि असीं दुनिया भर दे ज्ञानी ध्यानी इकट्ठे हो के भी उहदी व्याख्या नहीं कर सकते, पर उहदी बख्शिश नूं हंडांदे आ। जिवें लूण की डली समुंदर की गहराई नाप नहीं सकती, पर समुंदर विच खुर दे सकती है ना। सुकरात के जीवन की गल बड़ी प्यारी है कि समुंदर के किनारे एक छोटा जिहा बालका बैठा परेशान है, कदे रोंदा है, अपने कटोरे नूं समुंदर च भरदा है, फिर डोर दिंदा है। सुकरात ने पूछे, बच्चा तू रोंदा क्यों है? कहने लगा कि बाबा बड़े कोशिश करदा, इतना वड्डा पानी मेरे कटोरे च क्यों नहीं आउंदा? मैं कटोरा भरदा ये फिर उन्ना ही बच जाता है, मेरे कटोरे च आ ही नहीं रहा। ये सोच के सुकरात भी परेशान हो गया, सुकरात भी बह के रोन लग पिया। बच्चे ने पूछे, बाबा तेरी की परेशानी, तू क्यों रोना है? कहने लगा, बेटा यही तो परेशानी मेरी है, परमेश्वर बहुत वड्डा है, मैं दिमाग के कटोरे च पाउणा चाहुंदा, ये पैंदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं। जिन्ना को मैं जानदा उन्ना ही होर वड्डा हो जाता है, जितने को मैनूं समझ आउंदी पता लगता होर वड्डा है। ये गल्लां करदा सी कि बच्चे ने अपना कटोरा समुंदर सुट दिता। सुकरात ने पूछा, बच्चा ये की कीता ही? कहने लगा, बाबा मैं थक गया, थक के सोचा जे सागर मेरे कटोरे च नहीं आउंदा तो जा कटोरा ही सुट देने सागर च, कटोरा तो सागर च जा ही सकदा ना। बाबा कहने लगा, तो तेरी बड़ी कीमती है, मैं अपने दिमाग च अपनी मत च सब कुछ पाउणा चाहना, मैं क्यों नहीं लीन हो जाता? मैं सब कुछ वो है ना, ये समझ आ गई है, तो मैं अपनी छोटी जी मत दे विच क्यों पाउणा चाहना? असीं तुसीं बहुते ज्ञानी जिहड़े ने वो परमात्मा नूं अपनी मत के मुताबिक वरतन की कोशिश करे। हर कोई अपने ढंग नाल दस रहा, वो इदां दा जी, वो इदां दा जी, वो चार सिर जी, वो चार बाहां जी, वो इन्ने पैर, उन्हें इत्थे रहिंदा सतवें आकाश से पंजवें आकाश से, उस दुध के सागर च रहिंदा, उत्थे कोशिशां कर रहे हैं ना, पर की साड़ियाँ कोशिशों का कोई फर्क पिया नहीं। इस करके गुरु नानक कहते हैं लीन हो जाओ, उन्होंने अपने विच मत पुकाओ, उहदे विच लीन हो जाओ, समा जाओ, फिर पता लगेगा जितना वड्डा वो है उन्ने वड्डे तुसीं हो गए। दार्शनिक लोग कहते ना, अज जो पानी की एक छोटी जी बूंद सागर विच मिल जाती है तो पता कितनी वड्डी हो जाती है। असीं कहांगे डुब गई, मुक गई, नहीं मुकदी नहीं है। जिन्ना वड्डा सागर है हुण छोटी जी बूंद ओनी वड्डी हो जाती है। उस तरह तो छोटी जी बूंद ही सी, पर हुण सागर जिन्नी वड्डी हो गई है। बस यही सानू समझ आ जाए, असी नानी सी बूंद हाँ, पर जो गुरु सागर च मिलांगे, गुरु सागर जितने वड्डे हो जाएंगे।
और यही ਉਹਦਾ लखता का भेत है। और कोई कंध चित्र वांग मीला वांग ते ग्रंथा वांग नहीं है। गुरु पूरा ही समझाते ने कि भाई वो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। फिर की करिए? बड़े प्यार नाल कहंदे जिन एह चाखी सोई जाने। पर एक रहस की मठियाई है, एक ऐसा मिठा रस है जो रहस्यवादी है, जिसका बयान कोई नहीं। और ये इंज समझाते ने जिवें किसी गूंगे नूं मठियाई खवाईए। जिन एह चाखी सोई जाने गूंगे की मिठियाई। हुण सानूं पता है कि मिठियाई चंगी है, असीं खावांगे तो गुण ते अवगुण दसांगे। हुण गूंगे नूं खवा के उहनूं पुछीए भी भाई मठियाई किदां दी हो, तो गूंगा की दसेगा, क्योंकि ना तो साडी आवाज़ सुनदा है। याद रखना, जिहड़े पैदाइशी गूंगे हुंदे ने वो यकीनन बोले भी हुंदे ने। ये कुदरती कला है कि जो पैदाइशी गूंगा होएगा वो पैदाइशी बोला भी होएगा। वो ना बोलेगा तो ना साडी आवाज़ सुनेगा, वो इशारियां की भाषा जानता है। हुण गूंगे नूं पुछीए कि मठियाई खाधी है, किन्नी कु मिठी, की स्वाद आया, वो की दसेगा, क्योंकि ना तो साडे शब्द जानता है, सुनता है, तो ना उन्होंने बोलण दा पता है। पर फिर भी उहदे चेहरे ते आया होया खेड़ा ये दसेगा कि इसनूं बहुत आनंद आ गया है। इस तरह असीं तुसीं ते बड़ी व्याख्यावां करते हैं। एक बचन है सूत्र कदे कदे पाठ करते पढ़ते हैं, जिन हर पाया तिन है छुपाया। असीं सोचते हैं कि छुपा लिया, लुका लिया, नहीं लुकाया नहीं, वो दसन जोगा ही नहीं गा। जिस भी प्रभु के प्यारे नूं रस आया दसेगा तो की दसेगा, कदे कल्पना करना। आपां बैठ के जदों कई बार निज विच अभ्यास करते हो, निज बैठ के सिमरन करते हो, नितनेम पाठ जो भी अपना नितनेम है किसी का जो भी करते हो, करद्या किसी दिन आनंद आ जाए भी ठीक है, मन बुद्ध मन तन करके फ्रैश हाँ, स्नान पान करके बैठ के पाठ करना शुरू करता, किसी वाहिगुरू जाप करना शुरू करता, जाप करद्या पाठ करद्या आनंद आउण लग पिया। तुसीं किसी आनंद नूं माणिया किवें दसोगे? उहदी व्याख्या उन्होंने शब्दां च किवें परोगे? उस आनंद नूं जो जाप करद्या जो पाठ करद्या किसी जी ने माणिया हुंदा है, उन्होंने किवें व्याख्या करांगे? क्योंकि वो आनंद वो सरूर साडे दुनियावी ज्ञान वर्गा ते हुंदा ही नहीं। बस इन्ना बहुता प्रेम नाल गल करांगे क्योंकि अज आनंद आ गया, बस इन्ना कह देंगे भी अज पाठ करद्या ना अज आनंद आ गया। कदे कदे हुंदा है कीर्तन करन वाले नूं करद्या कीर्तन आनंद आ जाता है। कई बार हुंदा है शब्द विचार शब्द विचार करद्या सरूर आ जाता है, आनंद आ जाता है। फिर आला दुआला समा भुल जाता है कि किन्ने मिनट हो गए, कदों शुरू किया, कित्थे समाप्ति। क्योंकि आनंद का मतलब ही है जदों दुनिया मुक जाए, दुनिया का कलेश, दुनिया का झमेला, समय की पाबंदियाँ, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन की कहता, सब मुक गया। हो सके किसी को कोई समझ आया कि नहीं आया, पर जिसनों आनंद आया हुंदा ना वो अपने आनंद विच हुंदा है। इसे करके भाई गुरदास साहब ने एक थां जिक्र किया है, आ जिन्हां पशु पाले हुण उन्हां नूं पता होएगा। आ पशुआं नूं लोग पहलां हरे पट्ठे चारा आदि खुरलियां च पाउंदे, उहदे वास्ते लूण आदि रख देंदे, काला लूण लोग रख देंदे हुंदे सी। पर कुछ पशु खुरलियां चट रहे हुंदे सी। उन्होंने पुछिए भी चलो फिर भी काला लूण खाद्या चटियां कोई रस आउंदा होएगा, पट्ठे खाद्या कोई स्वाद आउंदा होएगा, पर खुरली चटियां की मिलता है? पर नहीं, पशु चटदे नहीं। ऐसी आदतां वेखियां उन्हें पट्ठे छड्ड के खुरली चट रहे होंदे। पता क्यों? उहदे विच इक उन्हां दा अपना मनोविग्यानक आनंद है। बच्चे अंगूठा चूसदे ने, की मिलदा उन्हां नूं? आ साडे घरां च मैक्सिमम शायद सारे सी चूसते हटे होवांगे, अंगूठे चूसते ने बच्चे। उन्हें पुछिए भी अंगूठे चों की मिलता है? ना मिठा है, ना दुध है, ना फिक्का है, कुछ भी तो नहीं, पर फिर भी बच्चा चूस ही जाता है। कईयों तो इन्नी आदत पै जाती है कि बिना अंगूठा चूसे सौंदे ही नहीं। आखिर कुछ आनंद रस है, वो बस वो फितरत है, एक सुभाव का आनंद है जिथे आदत ना बनता है। इस तरह अभ्यासियों का एक आनंद होंदा है जिसनों व्याख्यावां च नहीं किया जा सकता, जिसनों अजकल शब्दों की व्याख्या एक्सप्लेन नहीं कर, पर हुंदा है। जिन्हों कहते हैं कहो कबीर
गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। वो पुछया दस नहीं सकता। यही गल धन गुरु रामदास महाराज कह रहे ने कि ये जिसकी वस्तु थोई प्रभ जाने जिसनु दे सो पाए, वस्त अनुपात अगम अगोचर गुर पूरा अलख लखाए, जिन ए चाखी सोई जाना। ये नाम वस्तु भी जिन ए चखी है ना सिर्फ वो ही जानता है। बाबा फरीद साहब भी कहते ना कि माँ दुध ते बड़ा मिठा है, शक्कर बड़ी मिठी है, सब कुछ मिठा है, पर जो पुड़ी रस अज मिले है ये सब फिके रह गई। तेरे दिते हुए मिठे सब फिके हो गई। शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद, क्योंकि अज उन्होंने स्वाद आया जो रब दे नाम दा है। यही तो सतगुर समझाते गुरु कृपा करन करिया करिए, मंग करिया करिए महाराज जीवन च आनंद दे दिओ। आपां तमाशे देखते हैं, रंग तमाशे देखते हैं, कई बार हुंदा ना स्वाद नहीं आया, आपां शब्द वरतते हैं। कोई अखी तमाशा देखण गए, नाच गाना देखिया, भंडां दा तमाशा देख गए तो बैठे पर स्वाद नहीं आया। कुछ भी खादा जे नहीं, देखिया तो नाच है, देखिया तो तमाशा है, देखिए तो बच्चों की खेड है, बच्चे तो पसीने पसीन होकर लत-पत होए, असी किनारे बैठे हाँ खेडे तो बच्चे पर स्वाद नहीं आया। स्वाद नूं की मनना चाहते हैं, इसका मतलब साडा टेस्ट इस तो भी उच्ची खेड देखण दा बन चुका सी। इस करके वो हल्के पद्धर की खेड देख के सानू आनंद नहीं आया। असी होर हाई क्वालिटी की खेड देखना चाहते सा। भाई जो आनंद वो मानना चाहते सा ना, वो मानसिक है। इस तरह गुर कृपा करन असी कवितावां पढ़ीए सुनीए, असी सानू आनंद आउंदा थोड़ा जिहा, पर जो शब्द का आनंद आवेगा ना, ये दुनिया की कवितावां दुनिया के बोल फिके लगणगे, क्योंकि इन्हां दा रस ही बिठा है। फिर महाराज कहने के चेता रखना, जो ये आनंद किसी को आ जाता है फिर आनंद छुपता नहीं जी। रतन लुकाया लुकै नाही, जिमें किसी को रतन होवे तो लुका रहा होवे। ठीक है, अज तो असीं कहांगे देखो जी पैकेट बंद कर लिया, कपड़े पोटली च बंद लुक गया, इहदा भाव हुंदा है ये रतन जिहड़े हुंदे ना अंधेरे च चमकदे ने। किसी ने अपने वालों नादान बच्चे नादान ने रतन हनेरे च रखता, दीवा बुझाता, बत्तियां बंद करती जी मेरा रतन नज़र नहीं आएगा, पर उन्होंने ये नहीं पता कि रतन आप चमकता है। दुनिया भर के पदार्थ दीवा जगण ते सूरज चढ़न ते नज़र आएंगे, पर जिथे रतन या हीरे हो जी चीज़ां होणगियां, अगर शुद्ध है वो, जितनी शुद्धता की गहरी है वो आप चमकेगा। आ बाजार च मिलता ना रेडियम, साड़ियां घड़ियां च हुंदा है, हनेरे दे विच भी सानूं टाइम दिखा दिंदा है। अजकल तो बस रेडियम आवें पट्टियां लगदियां ने, हनेरे विच भी चानना देण लग पैंदियां ने। ये रत्ना की ही पालिश है, उन्हों का पानी मनिया जाता है। हुण ठीक बेशक उन्होंने वक्री वक्री धातुओं के नाम ना जानिया जाता है, नहीं तो पुराने कहते इस रत्ना का पानी है जिहड़ा हनेरे च चमक उठता है। भी असीं अपनी वल्लों इन्हां रतन नूं किते लुकाईए, पर रतन की खासियत है कि वह हनेरे विच चमकता है। पर किथों लुका लोगे? फिर तुसीं दीवे बत्ती बंद कर दोगे ना, तुसीं हनेरा कर दोगे ना, जितना हनेरा ज़्यादा करोगे रतन उतने ज़्यादा चमकेगा। जिन्होंने महाराज के रतन लुकाया लुकै नहीं। अगर किसी के हिरदे च नाम रतन प्रवेश करके आए तो चमकेगा, उहदे बोलों चों, उहदे कदमां चों, उहदे नज़रां चों, उहदे जीवन के आधार व्यवहार किरदार चों ये डुल डुल के पएगा, ये लुकेगा नहीं। उहदे बोल मिठे हो जाणगे, लोग उहनूं तपाणगे तपेगा नहीं, लोग खिजाणगे खिजेगा नहीं, लोग कल्पाणगे कल्पेगा नहीं, शांत रहेगा। समझ लेना जिहड़ा व्यक्ति जितना ज़्यादा शांत है इन्नी को गुरु करते की शांति वाली दात है। ये नहीं लुकदे, ये प्रकट हो ही जाते हैं। रतन लुकाया लुकै नाही, जे को रखै लुकाई। भाई जिवें को लुका के रखना चाहे ये रतन लुकदे नहीं ना। इस तरह जो किसी जी के उत्ते करते की कृपा वरतती है तो उसकी कृपा भी फिर लुकती नहीं गी, वो प्रकट हो जाती है। जिवें फुल खिड़दा है तो खुशबू अपने आप बाहर चली जाती है। एक पुरानी गाथा इतिहास नाल संबंध रखते हैं। जेबुन शाह औरंगजेब की बेटी है, सोहनी कवित्री है, सोहना साहित्य पढ़ती लिखती है। उहदे ते पाबंदियां लगा दित्तियां
कि वो बाहर नहीं निकलेगी, किसी ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ नहीं करेगी, कोई दूजा तीजा शख्स ਉਹਨੂੰ मुलाकात मिल नहीं सकता। बड़ा ठीक है, दुनिया भी राजा असी पाबंदियां लगाती ले लिया, कोई गल नहीं भाई, ठीक है मजबूरी है। पर उन्हें एक खत लिखे अपने पिता ਨੂੰ कहना कि पिता तुसी मेरे ते पाबंदियां लगातियां बाबा ठीक है, पर यह दसो खुशबू ते पाबंदियां लगा पाओगे? किसी बाग दे आले दुआले तुसी दीवारां उच्चियां कर दोगे, तारां लगा दोगे, पर जे अंदर फुल खिड़ गए ना तो खुशबू बाहर अपने आप आ जानी आ। आज जो मैनू खुदा ने दात दी, मेरी कविता दी, मेरे अंदर जो राग लय ताल दी है, इनू तुसी पाबंदियां च बंद नहीं कर सकते। मेरे शरीर ते पाबंदियां लगा दोगे, कोई दूसरा ना मिले, मौका देख के तुसी मैनू मार भी दोगे, पर इस संगीत नू बंद नहीं कर सकते। कि जो खुदा की दात है ना, लय सुर ताल, ये किसी ना किसी होर राही प्रगट हो जाएगी। संगीत नू कौन बंद करेगा? क्योंकि संगीत खुदा की दात है, कि तुसी नहीं बंद कर सकते, नहीं लुकदा, ये प्रगट हो के रहिंदा है। करते पुरख की दात भी सिमरन दात मिल जाती है, प्रगट हुंदा है। फिर आखिर ते बड़े प्यार ना कहते, सब किश तेरा तू अंतरजामी, तू सबना का प्रभ सोई। असी फिर एक गल कहीए, सिख होने के नाते सानू एक गल कहनी बनती है, हे सच्चे पातशाह आ जो कुछ भी मेरे आले दुआले है, जिसनों मैं हंडा रहा हर पक्षों, ये सब कुछ तेरियां दातां ने, सब कुछ तेरा। आ जितना ब्रह्मंडी पसारा है, जो दृश्यमान है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कुछ वो ने जो असीं नहीं देख पा रहे, जिन्होंने दृश्य ते अदृश्य कहने आ, जड़ ते चेतन भी लोग कहते हैं। ये जो कुछ भी ये सब कुछ तेरा है, तेरा है कि तू बनाया, सब कुछ तेरा ते तू अंतरजामी। और इस सारियां दे हिरदे अंदर की है ये तुहानू पता है। इसे करके असीं रोज़ पढ़ते हैं, अपने पढ़िया घट घट के अंतर की जानत, 2 बार पढ़िया जाता, दिहाड़ी च लोग पढ़ते ना प्यारे, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। भी सबनों पता है, आप जिन्ने जी बैठे हाँ, आप उत्तों किहो जे कपड़े पा के कितने हाथ जुड़ के बैठे सानू दिसता है, पर भाई की साडे अंदर प्रेम है, साडे अंदर एक दूसरे प्रति किहो जे भाव ने, साडे अंदर किहो जे विचारां ने, नैगेटिव ने, पॉजिटिव ने। असीं श्रद्धालु हाँ, तर्कवादी हाँ, की करते हाँ, कैसे हाँ, सानू नहीं पता, पर की साडे गुरु करते नूं भी नहीं पता, उन्होंने सब पता है। असीं कितने कोई ईमानदार हाँ, असीं कितने कोई प्रेमी हाँ, असीं की करते हाँ ते क्यों करते हाँ, ये सब उन्होंने पता है। पर मजे की गल है कि फिर भी साडे भेत प्रगट नहीं करते। अंतरजामी होने के नाते भी वो साडियां कमियां भेतां नूं प्रगट नहीं करते। इसे करके सियाणे कहिंदे ने कि भाई जदों अपने गुरु के सन्मुख होवो, अपनियां कमियां अपने गुरु तो लुकाओ नहीं, क्योंकि लुका ही नहीं सकते। इस करके खुल के खुद कहो कि महाराज मेरे चा कमी है, ठीक है, पब्लिकली आप शब्द वर्त लेने, उच्चा उच्चा बोल के थोड़ा कहना है, पर जदों हाथ जोड़ अरदास करते हैं उदों अपनी कमी की पता लगते, महाराज मेरे चा बड़ी वड्डी कमी, कृपा कर दो। भाई गुरदास साहब ने जुगत दी है, असीं मनते हैं ना कि भाई गुरदास साहब जी बहुत बड़ी शख्सियत ने, एक विद्वान ने, गुरु के प्यारे ने, गुरु के हुक्म च रहने वाले ने, रिश्ते धन गुरु अर्जन देव जी मामा जी भी लगते हैं। इन्ना वडप्पण होने के बावजूद भी सानू अरदास करने की जुगत देंदे, हाऊं अपराधी गुनहगार, हां बेमुख मंदा, इन्ना कुछ किते पौड़ी पढ़ के देखना। शायद असीं ते दूर खलोते दुश्मन नूं भी इन्ने शब्द नहीं वरतदे जिन्नियां गल्लां भाई साहब जी ने अपने ते कहती, मैं इन्ना हाँ दा भाव पता साडे लिए मत है, बजुर्ग ने साडे सानू मत देंदे भाई, जदों गुरु के हाथ जोड़ के खड़ो, ये ना कहो कि मैं ज्ञानी, देखो जी मैं बड़ा सरदार हाँ, फलाने इन्ने पोहे मेरी जब जी इन्नी प्रॉपर्टी ना, महाराज कृपा कर भुलना हारा, गलतियां का पुतला, कृपा करना, पता नहीं आउंदियां ही कितने को माड़े फुरने आ गए होने ने, महाराज क्षमा कर दो, हाँ अपराधी गुनहगार हो, बेमुख मंदा चोर यार, ये सब कुछ है ना। तो असीं कह दे कृपा से, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। तो कितना बड़ा एग्जाम्पल है, माटी का
क्या धोपै स्वामी। महाराज मिट्टी का की धोवांगे। सियाणे कहते भी आ जिवें साडे फर्शां 'च पत्थर दियां लगियां ने, इहनूं तो बड़े आराम नाल धो लैंदे हो ना, पानी बाल्टी पाए धुप गईयां। पर जदों ये पत्थर नहीं सी लगदा ते विहड़ा मिट्टी दा सी, की कदे धोता सी? मिट्टी दे विहड़े नूं कौन धोएगा? मिट्टी ते मिट्टी है ना, किन्ना कु धो लोगे। माटी का क्या धोपै स्वामी, मिट्टी नूं की धोवांगे। महाराज मैं मिट्टी हाँ, इदां दा ही हाँ मैं, गुनाह दा भरिया, पर बावजूद ये फिर भी तेरा हाँ। महाराज हम ऐसे माधो, हम ऐसे तू ऐसा है। अरदास करी महाराज सब कुछ पता तू। बड़ा प्यारा बचन भी है, असी जितने मर्जी पर्दे लगा लीए, पर जो करते दे घर साढ़े पर्दे खुलने तो फिर सब खुल जाने ने। दे किवाड़ अनक पर्दे महे, पर दारा संग फाका है, चित्रगुप्त लेखा मांगै, कौन पढ़दा तेरा ढक है। इसे करके बेनती करे कि महाराज कितनी कृपा करना, मेरे पर्दे संसार च नशर ना हो जान। ढाकन ढाक गोबिंद गुर मेरे, हे महाराज मेरा पर्दा टकिया रहे। पर महाराज तेनू पता है सब किछ तेरा, तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई। महाराज तू सबना का है, ये नहीं कि कला मेरा दावा है, कला सिखां दा दावा, कला पंडितां दा दावा, कदा नहीं, किसी का दावा नहीं। प्रभु के बाबत बड़ा प्यारा बचन है। ये परमात्मा की बख्शिश जिहड़ी है ना, परमात्मा का निज स्वरूप है। आपन बापै ना ही किसी को, जिवें असीं कहने क्या कि जी जायदाद है जगीरे कि किसी बाप दी है, असीं कहने मेरे बाप दी है। परमात्मा किसी के बाप का नहीं जे। आपन बापै ना ही किसी को, ते की है भावन को हर राजा। इत्ते भावां दा राजा, जिहदे भाव प्यारे ने, परमात्मा उहदा है। हाँ हर व्यक्ति नूं ये कहण दा हक है मेरे गोबिंद, सानू ये कहण दा हक है मेरे गोबिंद, मेरे सतगुर, मेरे प्यारे। और हर भगत, हर भाषा का भगत, हर इलाके का भगत कहता मेरे गोबिंद। शब्द उहदे अपने अपने होणगे, हो सकता कोई होर कहंदा होवे जो साडी समझ विच ना आवे, पर भगत ये कहंदे मेरे ने, मेरे गोबिंद है, मेरे सतगुर, मेरे प्यारे। तू सबना दा है, सारे तेरे ने, तू सबना का प्रभु, तू सारिਆਂ ਦਾ प्रभु है, भाव सारिਆਂ ਦਾ मालिक है। तू तेरी दात सुनी है, सोई का भाव तू ही है, तू सारिਆਂ ਦਾ मालिक है। बस आखिरी गल कहते, जिसनों दात कर है सो पाए। नाम की एक दात है, तो जिसनों नाम की दात मिलती है ना, जीवन यात्रा च कामयाब वही होंदा जी। ये गल पक्की है। जीवन यात्रा असीं सारे कर रहे हैं। जीवन यात्रा दे विच जिसनों भी नाम की दात मिलती है वही कामयाब होंदा है। ते दात, नाम एक दात है। नाम कोई तो है नहीं कि मैं चुक लवां आपे दो बार वाहिगुरू कह रहे नाम मिल गया। जिवें सिख दूजे नूं कहते हैं तू वाहिगुरू कहते मैं भी कहता नाम मिल गया, नहीं, नाम एक दात है। असीं जाप करना है, असां जाप करना है, पाठ करना है, अर्थ समझना है, विचारना है, तो कमाउणा है। असां दा ये काम है कि असीं वाहिगुरू वाहिगुरू जपना भी है, बाणी का पाठ भी करना है, समझना है, समझ के उसनूं अपने जीवन च इंप्लीमेंट करना है। ये साडा काम है। पर ज्यों ज्यों असीं करांगे, जितना जितना साडा हिरदा शुद्ध हो जाएगा, उतनी दात करता दे देगा, तो जितनी दात मिलेगी उतनी सफलता होएगी, जिनके उन्ना चल पाएगा। जिसनों दात कर है सो पाए। ये नाम एक अमुल्क दात है, जिसनों तुसीं दिंदे हो उसनूं मिलदी है। जन नानक आवर ना कोई। पातशाह अपना नाल एक दिन भाई गल पक्की रखना, होर कोई किसी तरीके दे नाल अपनी मर्जी ना कोई दात नहीं जे प्राप्त कर सकता। आ हुणे सुनिया, एह किने ही दात आपस ते जो पाई है। बई अपने आप चुक लिया तो कोई दात थोड़ा है। आज इत्थे असीं डब्बे कुछ मिठे पतासे पा के रख दईए, आपे आए मत्था टेकिया, 2 चुकले, 4 चुकले, 6 लै जाओ, कौन मना करता है? पर वो प्रसाद नहीं जरेना, उच्च भावना ही नहीं वो बननी, क्योंकि साड़ी मर्जी है। एक चुकिया मर्जी 4 चुक ले। प्रसाद की कलात्मक पक्ष उदों वरतदा है जदों साडे अदब नाल सिर झुकिया होवे, नेत्र झुके होण, ते प्रसाद वरताउण वाला बड़े अदब भाव दे नाल
जितने हाथ है साड़ी तली ते धर दे, ना उन्हें गिने ना मैं देखे, जो मिल गया सो सत है। तद किते जाके गल बनती। महाराज कहन लगे आवर ना कोई होर कोई तरीका जुगत नहीं जे, करता आप ही आप है, सब कुछ आप है। तो जिन्हों अपनी दात दिंदा है वो अपने इस टिके हुए मन नूं जो दलदल च फसिया है चला लैंदा है। वो आचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। वो फिर जीवन की सफलता ते बुद्धि प्राप्त करदा। एक वचन प्रवान करना, भुल चुक दी खिमा, आसीस ते प्यार दिंदे फतेह बुलावना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी